Hi there, welcome back to this Python series. So far, we have discussed about indexing, we have discussed about slicing, and the different syntaxes that exist in slicing. Okay, there were total of 5 syntaxes that we have seen, and we have seen how we can manipulate string. Okay, if we have a string, and how we can take out a collection of characters. Okay, with the help of different syntaxes. Okay, so we have seen all these things. Today we are gonna cover a very important thing जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, and the name of the topic is, you cannot guess, I think the name of this topic is typecasting. Okay, just hold on. Name of this topic is typecasting. Better to tell it as typecasting techniques. Okay, typecasting techniques. So before diving deep into this concept, I would like to ask, and I would like to request a small suggestions from you all, that after Python what would you like to learn. Okay, after Python I'm clearly asking, because according to your needs, your demands, I'll keep posting my playlist, I'll keep posting my videos in a depth manner. So it totally depends upon what after Python. Okay, the various options that you have is either to go with data science and machine learning. Okay, DSML. Second, you have to enter into DevOps. Okay, I always ask student to suggest me, because you are only one who learns, right? And I will only post according to you. Second is DevOps. After DevOps, what we have is, you can learn any language. Like there are multiple languages that are still pending, and let's consider C, C++. Whether you're first year, second year, it doesn't matter, right? I'll keep posting the videos on your demand. C, C++, JavaScript I also haven't covered till now. Thereafter what we have Golang, we have C#, we have Java. Okay, anything I can cover, but according to your demands only. Thereafter you can get into other things that if you want to explore, you can explore blockchain. Okay, thereafter you have cyber security. Don't worry, I'll give you a quick recap of which domain you should choose, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है अगर आप डोमेन को कंसिडर करते हो. डोमेन सिलेक्शन में हर स्टूडेंट को दिक्कत आती है, राइट? आप फुल स्टैक पढ़ते हो, आप AI पढ़ते हो. अगर आप AI पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आता कि भैया वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड वेयर टू एंड. ठीक है, उस चक्कर में बहुत सारे जो कोर्स नहीं ले पाते हैं 50,000, लाख, 1.5 लाख का, उसके लिए we will post each and everything. Okay, thereafter we can get into मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी हमारे पास रिएक्ट नेटिव आता है. ठीक है, मतलब रिएक्ट नेटिव तो एक है, इसके अलावा डार्ट आता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है उसके अंदर भी. ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट वी कैन गेट इनटू, जस्ट होल्ड ऑन, वी कैन गेट इनटू ऐप डेवलपमेंट. ओके, अभी जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रही है, सबसे ट्रेंडिंग वाला जो डोमेन है, ट्रेंडिंग, व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेंडिंग इज कि जब आप मार्केट के हिसाब से पढ़ते हो, एक होता है कि भैया मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं HTML CSS से स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट यार वो ज़माना गया. वाई सो आई एम टेलिंग दिस? क्योंकि अब HTML CSS अगर आप पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे. पीछे इसलिए नहीं रह जाओगे क्योंकि आप कुछ गलत पढ़ रहे हो, आप अपडेटेड नहीं हो. कंपनीज़ को क्या चाहिए? कंपनीज़ को चाहिए कि यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट SaaS प्रोडक्ट्स. ओके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, डिफरेंट SaaS प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हो. जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे कंपनी के, जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उसको ऑटोमेट कैसे करते हो, तो ये सब
चीज़ों को समझने के लिए, करने के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, बस एक, सब में नहीं घुसना। ओके, क्वेश्चन योरसेल्फ दैट विच लैंग्वेज यू शुड चूज़, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये एक लैंग्वेज चूज़ करने के बाद यू शुड चूज़ योर डोमेन कि भैया आई वांट टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी, और वेदर आई वांट टू लर्न डेवऑप्स, और वेदर आई वांट टू गो इनटू डेटा साइंस। ओके, दीज आर द, और ब्लॉकचेन भी बहुत ही तगड़ा है। लेकिन भैया ये सब डोमेन तो मुझे समझ आता है, लेकिन मैं एक डोमेन बता रहा हूँ आपको जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा अगर अभी आपने वो किया। एंड मैं वो कोर्स तभी लाऊंगा जब मुझे अराउंड 50 to 100 रिक्वेस्ट आ जाएंगे कि भैया लाओ, ठीक है। और उसका नाम है इस डोमेन का, अभी तक इंडिया और फॉरेन में मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कोई कोर्स नहीं आया है अच्छे लेवल का, ठीक है। 10 मिनट में कोई कोर्स नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको करना है तो अच्छे जगह से पे करना पड़ेगा आपको। एंड फॉरेन में भी मैंने काफ़ी कोर्सेज ट्राई किए हैं, बट क्वांटम कंप्यूटिंग जो आने वाले समय में इतने ज़्यादा डिमांड में है, या अभी भी डिमांड में है। अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग आती है, क्यूबिट्स क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, ठीक है। तो आप मिनिमम एज अ फ्रेशर यू कैन see someone that I want 15 to 20 lakhs as a fresher and they will pay you, right? तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I'm still not talking about the various domain। आप डोमेन सेलेक्ट करो, आप बताओ मुझे कि भैया I need to learn this, okay? And accordingly I'll post each and every playlist and courses, ठीक है। चलो, let's get into our today's topic is typecasting techniques। ओके, टाइपकास्टिंग टेक्निक क्या होता है यार? लेट मी इंक्रीज माई ब्राइटनेस फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट टाइपकास्टिंग की अगर हम हिंदी में देखें तो सिंपल मतलब इसका है कि एक डेटा टाइप को भैया एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम टाइपकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। टाइपकास्टिंग बोलते हैं। ओके, इतना समझ आ गया। अब इसके हम इंग्लिश वर्जन में देखें, क्योंकि भैया इन इंटरव्यू वी कैन नॉट ये है कि हम हिंदी में समझा सकते हैं, बट अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो रियली इट मैटर्स, ठीक है। ये बढ़म में मत रहना। बहुत सारे सीनियर आपको ऐसे ही गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई तू कैसे भी समझा इंटरव्यूअर को आंसर से मतलब है, लेकिन इंग्लिश मैटर करता है। ये बात जितने जल्दी हो सके अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये भ्रम में मत रहना कि भैया इंग्लिश नहीं आता, आई कैन कोप अप विथ हिंदी ओनली, ठीक है। वो प्रेफर इंग्लिश वाले को ही करेंगे, भले आपको बोल दें कि हाँ यू वेर एक्सेलेंट इन एट द इंटरव्यू टाइम, बट रियली मैटर्स अ लॉट, ठीक है। पहला डेफिनेशन हमने देख लिया। अब इंग्लिश में अगर इसको हम बताने की कोशिश करें तो व्हाट वी कैन राइट इज द पर्पस ऑफ typecasting technique in Python is to convert one type of value into another type of value, राइट। समझ आया? इतना ही बात आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि भैया जब भी हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, सो वी कॉल दिस प्रोसेस एज टाइपकास्टिंग, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ा जाए, आ जाओ। इसके अलावा अगर हम इसमें और ऐड ऑन करना चाहें तो इन पाइथन we have a total of 5
fundamental, we have total of 5 fundamental typecasting techniques. ठीक है, अगर हम पाइथन में बात करें तो टाइप कास्टिंग टेक्निक्स 5 होते हैं, 5 फंडामेंटल कैटेगरी में हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा टाइप कितने हैं हमारे पास. ठीक है, टोटल नंबर अगर हम देखें तो टोटल नंबर भैया आपने बताया था हमें पहले कि टोटल नंबर ऑफ डेटा टाइप कितना है. टोटल नंबर इज इक्वल टू 14. ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ. टोटल नंबर जो है भैया हमारे पास वो टोटल है 14. ठीक है, 14 है, लेकिन 14 में से हम टोटल 13 डेटा टाइप जो होते हैं ना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, 13 डेटा टाइप हम इसी को कंसिडर करते हैं. हम क्या करते हैं, इसी को कंसिडर करते हैं. ऐसा क्यों भैया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास कैटेगरी कितने हैं, हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी हैं. ठीक है, याद है किसी को, याद है क्या. सीक्वेंस पढ़ाया था हमने, फंडामेंटल देखा था, सीक्वेंस देखा था हमने, सेट देखा था हमने, डिक्शनरी देखा था और नन टाइप. तो लास्ट वाला जो कैटेगरी था ना, नन टाइप, हम इस डेटा टाइप को छोड़ के, ध्यान से समझो और दिमाग में बिठाओ इसको, कि नन टाइप को छोड़ के भैया इसको हम यूज़ नहीं करते हैं. होल्ड ऑन भैया, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, इतना मुझे समझ आ गया. नन टाइप जो है वी डोंट कंसिडर इट इन टाइप कास्टिंग टेक्निक्स, इन टाइप कास्टिंग मेथड और प्रोसेस और टेक्निक्स. ठीक है भैया, नॉन टाइप को छोड़ के हम सारे डेटा टाइप को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन इस भैया को पता नहीं कोई दिक्कत है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं. समझ आ गया. अब चलो हम ये देखते हैं, हमने बोला कि भैया देयर आर 5 टोटल ऑफ 5 फंडामेंटल टाइप कास्टिंग टेक्निक्स. तो 5 कौन से हैं हम यहाँ देखते हैं. ठीक है, 5 कौन से डेटा टाइप कास्टिंग के टेक्निक्स है वो हम देखते हैं. सबसे पहला भैया है हमारे पास इंट. ध्यान से समझना, अभी हम एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, पहला है इंट. अब ये क्या भैया, ये एक फंक्शन है. ध्यान से समझना कि जब हम टाइप कास्टिंग की बात करते हैं तो हम कुछ पाइथन में मौजूद कुछ फंक्शंस को यूज़ करते हैं, जो हमें हेल्प करता है टाइप कास्टिंग करने में. ठीक है, टाइप कास्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने में वो हमें हेल्प करता है. एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए वो मेरी मदद करता है. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ इंट. ठीक है, इंट आ गया. सेकंड नंबर पे है हमारे पास फ्लोट. ये सब क्या है भैया, ये सब हमारे पास फंक्शंस हैं. थर्ड कौन सा है हमारे पास है बूल. ठीक है, याद करो फंडामेंटल में कौन से आए थे, इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स. ठीक है, फोर्थ जो है वो है कॉम्प्लेक्स. ओके, फोर्थ जो है वो कॉम्प्लेक्स. अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ. ओके, और फिफ्थ जो है वो है str फंक्शन. ठीक है, तो ये 5 हमारे पास बेसिक फंडामेंटल के अंदर आते हैं. 5 फंडामेंटल टाइप कास्टिंग टेक्निक है, मतलब बेसिक टेक्निक है टाइप कास्टिंग के, इतना समझ लो. ठीक है, अब जब हम एक एक की बात करते हैं भैया, मतलब हमें पता चल गया कि हम इस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं. हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम हर एक फंक्शन को यूज़ करेंगे भैया. ठीक है, तो जब हमने ये फंक्शन लिखा है ना यार कि इंट, तो इंट को छोड़ के समझो इस बात को. अगर मैंने लिखा यहाँ पे इंट अगर फंक्शन को यूज़ कर रहे हो आप, तो मतलब कि दूसरा डेटा टाइप जो है ना, दूसरा डेटा टाइप उसकी वैल्यू को
दूसरा डेटा टाइप उसकी वैल्यू को हम इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला भैया हमने, अगर हमने इंट लिखा है, ठीक है, अगर हमने इंट लिखा है इसका मतलब कि हम अदर डेटा टाइप्स के वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ना कि इंटीजर के वैल्यू को अलग डेटा टाइप्स में। ठीक है, इंट के अलावा हम किसको कर सकते हैं, देखो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोट होगा, हमारे पास भैया बूल होगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, ध्यान से समझना, और हमारे पास भैया स्ट्रिंग डेटा होगा। ठीक है, तो ये चारों डेटा टाइप को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को वी कॉल इट एज अ टाइप कास्टिंग। इतना समझ आ गया। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब हम इन चारों डेटा टाइप को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंट में करेंगे। ठीक है, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग में कुछ कंडीशंस होती हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझो। मैंने क्या बोला कि भैया आपने बोला कि 4 डेटा टाइप हैं एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर डेटा टाइप, अंडरस्टूड। देयर आफ्टर आपने बोला भैया ये कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये कि भाई आप ही समझो कि स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ अगर कोट्स के अंदर होती है तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट। कोई भी चीज़ अगर कोट्स के अंदर होती है तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं पाइथन में। लेकिन उस कोट्स के अंदर भैया कुछ अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है ना। हम सिंगल को भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो लेट्स सपोज ये 5 स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने कोट्स के अंदर डिफ़ाइन किया है, बट वैल्यू अभी डिफ़ाइन नहीं किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं इंटीजर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 20। ठीक है, तो 20 क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है भैया, राइट। अब मैं लेता हूँ 20.2। ठीक है भैया, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ ट्रू, भैया ये भी एक स्ट्रिंग है। अब मैं ले रहा हूँ 2 या 3 प्लस कुछ भी 3j, 2 + 3j, भैया ये कॉम्प्लेक्स डिफ़ाइन किया है आपने, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर मतलब कोट्स के अंदर किया है, तो वो स्ट्रिंग के तरह पे वो कंसिडर होगा। ठीक है, और लास्ट वाला XYZ। तो एक बात बताओ यार, ये सारे स्ट्रिंग ही है? क्या ये सारे स्ट्रिंग्स ही हैं? हाँ भैया, ये सारे स्ट्रिंग हैं, लेकिन क्या इनके अंदर की वैल्यूज़ सेम है? नहीं भैया, इसके अंदर की वैल्यूज़ सेम नहीं है। इसलिए हम इसको अलग अलग कैटेगरीज़ में करके देखते हैं, अलग अलग चीज़ में डिफ़ाइन करते हैं सारे ये स्ट्रिंग, लेकिन इसके अंदर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। एंड डिफरेंट वैल्यूज़ के होने के वजह से हम स्ट्रिंग में 4-5 कंडीशन एक्स्ट्रा देखते हैं। ठीक है, बाकी ये सब जो है ना, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, इन सब का एक ही कैटेगरी होगा, मतलब एक बार में समझ आ जाएगा, और स्ट्रिंग में 4-5 उसके अंदर है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखो ये 4 को हम क्या करते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा पेंडिंग में रखो। पहले हम इंट के बारे में सारा जानकारी प्राप्त करते हैं, देयर आफ्टर हम मूव करेंगे फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, आपको समझ आ गया कि फॉर एग्जांपल भैया मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करना है मुझे, तो सारे अदर डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बूल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो भैया मैं इन चारों को अब इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। मतलब जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो उसके अलावा जो भी डेटा टाइप मौजूद हैं उसको आप कन्वर्ट करते हो इसमें फंक्शन में। ठीक है, आपको ऑब्टेन क्या करना है एज एन आउटपुट, आपको चाहिए इंटीजर। अगर आप इंट फंक्शन यूज़ करते हो तो आपको एट द एंड क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ओके, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला है हमारे पास इंट। ओके, स्टार्ट करें, आ जाओ। इसका मेन पर्पस क्या है इंट का? सबसे पहले अगर हम पर्पस देखें तो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग। आप लोग नोट्स बनाया करो यार, अगर नोट्स नहीं बनाते, आई नो कि इस ज़माने में लाइक कोई भी पूरा लेक्चर नहीं देखता,
राइट। पूरा लेक्चर कोई नहीं देखता, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि 10-20 स्टूडेंट भी ऐसे मिलेंगे मुझे वो आर रियली सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर। ठीक है, जब तक इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे, कंपटीशन वैसे ही बढ़ रहा है, आप compete नहीं कर पाओगे। सो int इज़ mainly used for converting one possible type of value into int type value। ठीक है, इसका मतलब समझो कि वन पॉसिबल टाइप का मतलब भैया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग। इंट को हटा के सब लिख दो। ठीक है, लेकिन इसको किस में करना है भैया, मुझे इंट में करना है। ठीक है, इन सब डेटा टाइप को इंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इंट्स का यूज़ में लेते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स की जब हम बात करते हैं तो सिंटैक्स में क्या आता है, सिंटैक्स में आप लिखोगे सबसे पहले वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, यहाँ पे बूलियन लिख सकते हो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो और यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हो। राइट, तो ये सब चीज़ आ सकता है। ये क्या है ना, ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स है। समझ आया? ये क्यों नहीं ले रहा ये, जस्ट वेट। ठीक है, हटाओ। ठीक है, सिंटैक्स आपने देखा। अब हम सीधा इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है भैया कि हम इसकी डेफिनेशन को बार बार फालतू में टाइम वेस्ट करें डेफिनेशन देख के। लेट्स कम डायरेक्टली ऑन एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स से ही प्रैक्टिस होगा हमारा, एग्जाम्पल से ही हमें समझ आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। मुझे किस में करना है, देखो यहाँ पे मुझे करना है फ्लोट को, सबसे पहले फ्लोट को इंटीजर में। ठीक है, और मैं हो सके तो एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, 4 है ना हमारे पास, फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स के लिए देखो, फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आ जाओ फ्लोट, फिर आ जाएगा बूल टू इंट, फिर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स टू इंट, फिर आ जाएगा स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, 4 हमने देखे एंड चारों का हम कैटेगराइज करते हैं। चारों का हम क्या करते हैं, कैटेगराइज। सबसे पहले जब हम फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट के वैल्यूज़ को मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इंटीजर में करना है। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं भैया, हम ले सकते हैं a इज़ इक्वल टू 12.24। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ करना है, इंट ऑफ a। ठीक है, इंट ऑफ a। तो इंट ऑफ a जब आप करोगे ना, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू अभी हम नहीं देखेंगे, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ। ये वैल्यू हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, हमें ये चेक करना है कि क्या इस चीज़ को ये कन्वर्ट कर पा रहा है, क्या इस वैल्यू को 12.24 को ये फंक्शन इंट ऑफ a ये क्या कन्वर्ट कर पा रहा है इंटीजर में या नहीं। ठीक है, अब अगर हम कोई और वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल b इज़ इक्वल टू 0.35। ओके, एंड इंट ऑफ b, मतलब छोटे छोटे एग्जांपल देखने हैं आपको, तो ये भी देखना है हमें। बस आप लोग सोचो कि क्या इस वैल्यू को ये कन्वर्ट कर पाएगा। ओके, ज़्यादा नहीं देखते हैं, 2-4 ही देखते हैं। अब हम बूलियन की बात करते हैं।
तो बूल में क्या है, लेट्स सपोज वी हैव a इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, हमारे पास a इज इक्वल टू ट्रू है एंड हम देखते हैं int ऑफ a। जब हम int ऑफ a करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, और लेट्स सपोज b इज इक्वल टू फॉल्स है, b इज इक्वल टू फॉल्स है। जब b इज इक्वल टू फॉल्स है तो int ऑफ b क्या होगा हमारे लिए, ठीक है, int ऑफ b हमारे लिए क्या होगा, राइट। तो दो चीज़ हमने सीखा यहाँ पे। अब इसका वैल्यू अभी हमें नहीं लिखना, हम प्रैक्टिस करके देखें कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे ये देखना है कि क्या ये कन्वर्ट कर भी पा रहा है या नहीं इंटीजर में। ओके, अब हम कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स में कोई भी डेटा आप उठा सकते हो। लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू 2+3 जो हम हमेशा से यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स से इंट ऑफ a, ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या ये कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ये भाई साहब इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन क्या ही बोलूँ या नहीं करता, सिंपल से, ठीक है, ये यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या पॉसिबल नहीं है भैया, कि कॉम्प्लेक्स डेटा को आप इंटीजर डेटा में नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, नंबर प्लस लेटर, लाइक एक इमेजिनरी नंबर आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। तो वी कॉल इट एज, क्योंकि हम अल्फ़ा न्यूमेरिक इंटरव्यू में आपको ऐसे ही समझा के बोलना है सर, क्योंकि हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो वो उसको नहीं कर पाता, लाइक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, इमेजिनरी नंबर को वो नहीं कर सकता, ठीक है। और इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, वी विल गेट अ टाइप एरर, ठीक है, हमें क्या मिलता है, टाइप एरर। देखो हर पॉइंट को एकदम डेप्थ में समझो और कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स डेटा को हम इंटीजर डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक वो नंबर होता है, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ होती है और इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए हमारे पास क्या आता है, टाइप एरर। हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, अब स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें ना कुछ कैटेगरीज़ हैं जो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 120, कुछ भी ले सकते हो आप। फिर इसमें अप्लाई करो इंट ऑफ a, हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे a इज़ इक्वल टू 8.2, ठीक है, फिर करो इसके इंट ऑफ a, ठीक है, देयर आफ्टर a इज़ इक्वल टू, वैल्यू चेंज करते रहो। फिर हम देखेंगे ट्रू क्या है, ट्रू क्या दे रहा है। फिर a इज़ इक्वल टू 2+3j, कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर मेरे स्ट्रिंग के अंदर है तो वो क्या देता है, और a इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज कोड पैक्ट। जो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ बता दूँ मैं, इस दोनों पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स में भी हमें एक चीज़ देखना है भैया, एक नोट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में भी एक नोट है और स्ट्रिंग में भी एक हमारे पास नोट है, ठीक है। नोट क्या है भैया, नोट ये है कि यार कॉम्प्लेक्स में ना एक चीज़ मैं बता दूं कि जो नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है, चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नोट अभी रहने दो, अभी के लिए रहने दो, बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ उस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये 5 चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। अब सब में आप क्या करोगे, सब में आप इंट ऑफ a करोगे, फिर इंट ऑफ a करोगे, फिर इंट ऑफ a करोगे, तो ये डिफरेंट हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब भैया इसमें आप बताओ कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स से जब इंटीजर में कन्वर्ट किया तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भाई टाइप एरर आएगा, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इंटीजर में कॉम्प्लेक्स डेटा को नहीं कर सकते आप। अब अगर हम स्ट्रिंग में देखें
तो स्ट्रिंग में भैया ये तो पहले से ही है, ये तो पहले से ही लाइक इंटीजर डेटा है ना उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो हाँ, हम ले सकते हैं इसको, आराम से ये कन्वर्ट कर सकता है, तो ये राइट होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिकल अभी नहीं किया, तो वी कैन नॉट डिफाइन कि हाँ ये सही होगा ये गलत होगा, बट हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना। अब अगर मैं यहाँ पे 8.2 लिख रहा हूँ तो भैया आपको क्या लगेगा कि भैया हाँ ये सही होगा, आपको लगेगा ऐसा, मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि भैया ये सही हो सकता है लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि भैया हम फ्लोट को तो कर ही सकते हैं ना, राइट, क्योंकि हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन ये इस कंडीशन में गलत होता है, हम देखेंगे क्यों होता है, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ। ये ना देखो 8.2 अगर सिंपल फ्लोट में रहे, अगर 8.2 सिंपल अगर फ्लोट में रहे, अगर स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ये सही होगा क्योंकि उसको कर सकता है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग के अंदर इसको लिखते हैं ना, तो इस डॉट को, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस डॉट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पाइथन उस डॉट को कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, डॉट को वो नहीं कर सकता। और इस पॉइंट पे वी विल गेट, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे वी विल गेट अ वैल्यू एरर। हर एक एरर आपके दिमाग में बिठ जानी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी पूछे और कोई भी सामने में हो, भले ही IIT नहीं क्यों ना, आप पूछ सकते हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भैया आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो पुराने लेक्चर्स भी तो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, एक वैल्यू एरर, क्योंकि हम इस डॉट को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, हम नहीं, पाइथन नहीं कर पाता, ठीक है। देयर आफ्टर ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। क्या भैया हम ट्रू को कर सकते हैं क्या? क्या हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, जब हम यहाँ पे भी एक सिनेरियो है, जब हम ट्रू के बारे में देखते हैं भैया, ठीक है, आप समझाओ बस। जब हम ट्रू देखते हैं तो भैया ट्रू का तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है, ट्रू का वैल्यू 1 होता है। अगर मैं सिंपल अगर इंट ऑफ ट्रू लिखूं तो ये मुझे 1 देता है, राइट। लेकिन जब इसी ट्रू को मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूं तो क्या ये वैल्यू 1 आएगी? नहीं भैया, ये 1 नहीं आएगी, क्योंकि अब ये भाई साहब कोट्स के अंदर मौजूद हैं, तो पाइथन इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। स्ट्रिंग ट्रीट करेगा मतलब आउटपुट भी क्या देगा? ट्रू, ठीक है, आउटपुट भी क्या देगा मुझे? ट्रू। और इस कंडीशन में पाइथन क्या ट्रीट करता है? इस ट्रू को वो ट्रीट करेगा एज अ प्योर स्ट्रिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? एक प्योर स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास वापस से क्या आएगी? हमारे पास वापस से वैल्यू एरर आएगी, ठीक है, हमारे पास वापस से वैल्यू एरर आएगी। यहाँ पे क्यों आएगी भैया? क्योंकि आपने बताया कि स्ट्रिंग के अंदर ट्रू का वैल्यू एज अ प्योर स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा है, वो एज अ वैल्यू नहीं देगा। सिंपल आप 2 लिखते हो तो 1 आ जाएगा, लेकिन एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। इतना समझ आ गया भैया मुझे, चलो बहुत अच्छा। देखो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इससे मैं खुश भी हूँ, इससे मैं गुस्सा भी हूँ, क्योंकि वैसे ही कोई नहीं देख रहा। 40-50 व्यूज़ लेके मुझे क्या ही मिल जाएगा, राइट। बट मैं करूँगा जहाँ तक पॉसिबल हो, जितने साल पॉसिबल हो मैं करूँगा, और सब चीज़ फ्री में रहेगा। तो पैसे की टेंशन मत लो, मैं कुछ भी चार्ज नहीं करने वाला, ओके। चार्ज करूँगा बस आपका सपोर्ट, ठीक है, उतना तो दे ही सकते हो फ्री में, ओके। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू एरर वापस से मिलेगी, प्योर स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम इस कंडीशन की अगर बात करें यार, कि यहाँ पे इस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स को क्या मैं भैया कर सकता हूँ कन्वर्ट? कॉम्प्लेक्स वैल्यू है मेरी, ठीक है, उसको क्या मैं इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, वापस से वही बात आ जाएगी भैया, टाइप एरर वाली बात आ जाएगी। कैसे कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। अब वापस से आप इसमें देखो कि भैया आपने यहाँ लिखा है कोड पैक्ट, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, तो ये भी एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा,
स्ट्रिंग नहीं बोलो इसको, इसको प्योर स्ट्रिंग बोलो, इसको क्या बोलो, प्योर स्ट्रिंग। तो ये भी एज अ प्योर स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा। और जब ये ऐसे होगा तो इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमने देखा इनसाइड व्हाट, इनसाइड इंटीजर, कि इंटीजर के अंदर हमारे पास ये सारे सिनेरियो आते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत आराम से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं ले सकते तो नोट्स बना लो, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब एक कंपैरिजन करते हैं। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे वापस से, ठीक है। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले आप लोग बताओ मुझे कि हमारे पास, ओके जस्ट अ सेकेंड, कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप है भैया। सबसे पहले फ्लोट है, थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर लूँ इसके साइज़ को वरना ये प्रॉब्लम देगी हमें, ठीक है। मैं टेबल बना रहा हूँ बस। सबसे पहले भैया हमारे पास है फ्लोट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बूल, तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, चौथा है हमारे पास भैया SI लिख रहा हूँ मैं। अब SI क्यों लिख रहा हूँ भैया, इंट, लाइक इंट स्ट्रिंग बोल सकते हो, स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर, ठीक है। फिर आप फ्लोट स्ट्रिंग लिख सकते हो, फिर आप बूलियन स्ट्रिंग लिख सकते हो, फिर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग लिख सकते हो, एंड देयर आफ्टर एट द लास्ट वी हैव SP। SP का मतलब प्योर स्ट्रिंग, क्या बोलना है, प्योर स्ट्रिंग। अब इन सब सिनेरियो में मुझे कन्वर्ट किस में करना है भैया, हम क्या कर रहे हैं ना, हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, तो इंट फंक्शन यहाँ लगाओ, ठीक है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन किस में कन्वर्ट हो सकता है, कौन किस में नहीं हो सकता। तो क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट डेटा को इंट में, बिल्कुल सही। क्या हम बूल डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है, नहीं भैया, कॉम्प्लेक्स में आपने बताया था कि वी विल गेट अ टाइप एरर, ठीक है, तो ये नहीं होता। क्या इंटीजर स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रिंग के अंदर अगर इंटीजर है, कोट्स के अंदर इंटीजर है, तो क्या वो कन्वर्ट हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है, ठीक है। हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है बट हम देख रहे हैं अभी, मैं बता रहा हूँ तो लाइक सही बता रहा हूँ, वो चीज़ हम करेंगे अभी, ठीक है। फिर फ्लोट को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसमें हमें क्या मिलेगी, वैल्यू एरर, ठीक है। क्या हम बूलियन को कर सकते हैं भैया, नहीं कर सकते। बूलियन को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ प्योर स्ट्रिंग वो कंसिडर होता है, जो भी लिखोगे ना एज अ प्योर स्ट्रिंग उसको लगेगा पाइथन को, ठीक है। तो इसमें भी हमें सेम चीज़ ही मिलेगा। फिर हम कॉम्प्लेक्स को कर सकते हैं भैया, नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स अलाउड नहीं होता क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, और या फिर अल्फा न्यूमेरिक आप बोल सकते हो। फिर अगर हम प्योर स्ट्रिंग को देखें तो प्योर तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो आप लोग लिख लो या फिर दिमाग में छाप लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को ना याद करके रखना, इस चीज़ को याद कर लेना, क्या कर लेना, याद कर लेना। किसी को भी आप घुमा सकते हो इन सारे कॉन्सेप्ट्स में, किसी को, ट्रस्ट में। कोई भी ट्रेनर भी आपके पास आता है ना, कोई भी ट्रेनर, अगर आपके नॉर्मल कॉलेजेस में कोई ट्रेनर आ रहा है पाइथन का, अच्छे से दबा के पूछो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। टाइप कास्टिंग के मतलब पता तो होगा ही डेफिनेटली, बट हम जितने डिटेल में पढ़ेंगे ना वो बहुत ही तगड़े लेवल का पढ़ेंगे, ताकि एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से ना जाए, राइट। अब हम चलो प्रैक्टिस पे आते हैं, इन सारी चीज़ों को का हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, लेट्स ओपन आवर पाइथन, वेयर इज पाइथन मैन, ठीक है, आ जाओ, क्लियर, ज़ूम इन। देखो पाइथन के बाद ना हम इसके टूल्स पे भी आएंगे, लाइक मैटप्लॉटलिब है हमारे पास, और बहुत जैसे यूज़ करते हैं पाईचार्म, पाईटॉर्च, ये सारे। फिर हम मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे डेटा विजुअलाइजेशन के टूल हैं,
ठीक है, डेटा बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो हम वो भी देखेंगे, बट फिलहाल पाइथन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें भैया फ्लोट वाला कन्वर्ट करना है, तो लेट सपोज ए इज़ इक्वल टू, मैं लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू 10.24, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं करता हूँ इंट ऑफ, डायरेक्ट अगर करें हम इंट ऑफ ए तो देखो 10 दे दिया, राउंड ऑफ करके 10 दे दिया ना हमें, समझ आया? ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल। सेकंड भैया इसी में आपने एक और बताया था कि अगर ए का वैल्यू आप ऐसे लिखो कि 0.32, ठीक है। अब अगर करो इंट ऑफ ए तो मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मेरा फ्लोट डेटा टाइप है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो परफेक्टली मुझे ये दे रहा है, ठीक है। सेकंड हम बूलियन डेटा को लेते हैं। लेट सपोज मैं ए को डिफाइन करता हूँ एज ट्रू, एक मैंने ट्रू डिफाइन किया है। अब अगर आप लोग प्रिंट करोगे डायरेक्ट प्रिंट ऑफ ए और टाइप ऑफ ओके, प्रिंट ऑफ ए और टाइप ऑफ ए, तो क्या देगा? ट्रू दे रहा है। और क्लास क्या है? बूलियन, ठीक है, क्लास बूलियन है और दे रहा है ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अब अगर मैं ए इज इक्वल टू ट्रू है, अब इसको आप प्रिंट करो एज इंट ऑफ ए, ठीक है, 1। कोई दिक्कत? हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, ट्रू का वैल्यू 1 होता है तो आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो बूलियन को भी। कोई भी दिक्कत हो तो आप वो मैप जो हमने बनाया अभी उसको आप रेफ़र कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं, चलो इसमें और अगर देखें ए को अगर हम फॉल्स देखें तो भैया आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, क्या आएगा? इंट ऑफ ए 0, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ आपको पता हैं। हम आते हैं भैया कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं ए इज़ इक्वल टू 2 + 3j। एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे j के अलावा कुछ और लूँ, जैसे i ले लूँ या फिर k ले लूँ, तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा भैया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये इसलिए काम नहीं करता क्योंकि पाइथन में ये डिटरमाइंड नहीं है, पाइथन में आपको j ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हमने ये डिफ़ाइन किया है, लेट्स सपोज इंट ऑफ ए, क्या आएगा भैया? आपने बताया था कि एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? टाइप एरर। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है ना, ये इमेजिनरी नंबर है और उसको, इस पूरे कलेक्शन को हम क्या डिफ़ाइन करते हैं? अल्फ़ान्यूमेरिक, ठीक है। देखो क्या आया मेरे पास एक बहुत सा सुंदर सा टाइप एरर आया, इंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग, अब बाइट लाइक ऑब्जेक्ट, ये बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि भैया आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी डिफ़ाइन कर लो। मतलब इस फंक्शन में, इन फंक्शन में आप कोई स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर सकते हो, एक बाइट लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो जिसको कन्वर्ट करना है। रियल नंबर में फ्लोट भी आ जाता है ऑफकोर्स। नॉट कॉम्प्लेक्स, ये बोल रहा है भैया कॉम्प्लेक्स मत डालो, बस इसके अलावा आप सब कुछ यूज़ कर लो, ठीक है। तो हमने देखा कि टाइप एरर आ रहा है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना नोट्स बना के, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 140, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। अब हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, ए को, तो क्या लगता है भैया? हाँ हो जाएगा। आपने बताया था कि हाँ हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है, ठीक है। अब भैया अगर मुझे फ्लोट चाहिए, 14.35, ठीक है, और अगर मैं इंट ऑफ ए करूँ, तो भैया आपने बताया था कि जब ये स्ट्रिंग के अंदर होगा ना, ध्यान से सुनो, जब ये स्ट्रिंग के अंदर होगा कोई भी फ्लोट वैल्यू, तो ये डेटा अगर सिंगल रहता तो वो कर देता, लेकिन यहाँ पे डॉट जो है ना वो दिक्कत करेगा भैया, ठीक है। जब वो दिक्कत करेगा तो कौन सी आएगी मेरे पास एरर? भैया वैल्यू एरर आपने बताया था एक, ठीक है। वैल्यू एरर क्यों आएगा? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10, ठीक है, इनवैलिड लिटरल बता रहा है मुझे, ठीक है भैया, समझ आ गया। तो पहला ये क्या है? स्ट्रिंग का पहला एग्जाम्पल ये था, सेकंड एग्जाम्पल ये था। मैं डेटा को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, हम हर बार सेम नहीं लेंगे, ओके। ये सेकंड एग्जाम्पल था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भैया बूलियन का था। लेट सपोज मैं
इस स्ट्रिंग के अंदर हम अगर ट्रू लेते हैं तो क्या ये सही है भैया? इंट ऑफ ए करूँ तो नहीं। हम अगर सिंपली स्ट्रिंग के बाहर अगर ट्रू को लिखते तो वो दिक्कत नहीं देता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगी बहुत प्यारी सी। ठीक है, हमने यहाँ भी देखा था कि भैया वैल्यू एरर आ रही है, आप नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ना इसको एज अ प्योर स्ट्रिंग कंसिडर करता है पाइथन। तो जब कोई चीज़ प्योर स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आप कैसे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग माय नेम इज़ आदित्य मिश्रा। ठीक है, और आप हर एक कैरेक्टर्स, जैसे मान के चलो मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, अब उसको मैं बोलता हूँ कि इंटीजर में कन्वर्ट करो, भाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ट्रू की वैल्यू 1 होती है लेकिन जब आप इसको कोट से बाहर लिखते हो, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है जब आप इसको कोट से बाहर लिखते हो। ठीक है, अगर कोट्स के अंदर लिखोगे तो हमें वैल्यू एरर देगी। राइट, ये रहा थर्ड एग्जाम्पल स्ट्रिंग के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आता है भैया, a इज़ इक्वल टू 2 + 4j। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या आएगा? नहीं भैया, इसमें भी एरर आएगा क्योंकि हमने लास्ट देखा था कि सारे गलत ही थे, स्ट्रिंग में 1-2 छोड़ के बाकी गलत ही था। देखो इसमें भी वैल्यू एरर आ रही है हमारे पास, इनवैलिड रिटर्न फॉर इंट। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इमेजिनरी है भैया, ये प्रोसेस नहीं कर सकता। समझ आया? तो ये 4 हो गए। और लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट एज अ प्योर स्ट्रिंग में अगर हम देखें तो प्योर स्ट्रिंग क्या देना है? लेट्स सपोज अब कोड पैक्ट, चलो कोड पैक्ट हमें देखना है तो क्या इस चीज़ को कन्वर्ट कर पाएगा क्या इंट में? कोई नहीं करता भैया, कोई नहीं कर पाएगा, कोई लैंग्वेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें भी हमें क्या मिलेगी? वैल्यू एरर। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के ना एरर होते हैं। अभी हमने क्या दिखा? सबसे पहले आपको दिखाया मैंने टाइप एरर। टाइप एरर कब आता है? जब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि डॉट को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसमें टाइप एरर आता है। इसमें वैल्यू एरर कि भैया जो वैल्यू आपने दिया है ना इसके अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें वैल्यू एरर आती है। नेम एरर एक और एरर होता है जो तब आता है जब वेरिएबल्स नहीं मिलते। ठीक है, हम पढ़ेंगे, शायद मैंने बता भी रखा होगा, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, नेम एरर होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 5th एग्जाम्पल था, समझ आया? और ये टेबल तो भूलना ही मत, ये जो टेबल मैंने लिखा है, बताया है, इसको और इसको। ठीक है, सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब आप इस चीज़ को पढ़ो एक बार, जो भी हमने लिखा है ना, अब अगर आप पढ़ते हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। राइट, चलो ध्यान रखो, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे भैया कि यहाँ पे इंट वाला ही देखा है ना हमने, बस इतना बड़ा लेक्चर जो हुआ वो बस इंट भाई साहब के ऊपर ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोट देखेंगे, फिर बूल देखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स देखेंगे, फिर स्ट्रिंग देखेंगे। ठीक है, तो 2-4 लेक्चर इस पे होगा। पेशेंस के साथ देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। अगर मन है तो, मुझे सपोर्ट मांगना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते, ध्यान रखो, पढ़ो दबा के।